Today I am taking up the topic of graphical presentation, that is chapter 7 of the statistics. Okay, and here we will talk about two types of graphs, which are what? It's frequency distribution graph and time series graph. Obviously, as the name is telling, कि in frequency distribution graph we will talk about the graph which contains frequency, and time series graphs are generally for used for showing the time, like years, months, like that. Okay, now let us discuss them one by one. Frequency distribution graphs. Frequency distribution graphs are of following types. You can see line frequency graph, in which only line is framed or constructed. Histograms is generally used for continuous series. Polygon whenever you will construct whenever you will meet the midpoints of histograms, you will get polygon by scale. If you touch you construct a line with free hand, then it will be converted into curve. And ogive or cumulative frequency curve, whenever we take up cumulative frequency, then we are able to construct ogive. So these are various types of graphs which we will discuss in frequency distribution graphs, that is line frequency graph and so on. We will talk about these one to one. Okay, जैसे in GIST we have shown also in line frequency graph what we do, generally it is used for discrete series, right? In histogram is generally used for class intervals, frequency polygon, frequency distribution, or when we make frequency polygon with free hand, it is frequency curve. Okay, one by one we will deal this line frequency graph. जैसे कि नाम बता रहा है कि we will draw what? We will draw lines here. We will plot what? We will plot lines here. Okay, like this. Whenever data is plotted using scale, ठीक है, using scale in a straight line, it is called line frequency graph. All these graphs will be constructed on graph paper. This chapter will be done on graph paper itself, right? Now prepare line frequency graph. इसमें क्या होता है? Generally it is used for depicting frequency series. Now just see, this is your question. Weight, number of students. Weight is 45, 46, 47 and so on. Number of students are 4, 6, 9, 8, 18, 26, 15. So first of all, how we will mark the graph? Keep this in mind. This is X series. This is X. This is 5. You will first of all put the headings. What you are showing on y-axis, what you are showing on x-axis, right? अच्छा, अब इसके बाद what we are saying कि we are using straight line graph, नाम ही बता रहा है straight line is there, we are plotting that. कि for example अगर मैं इसी की बात करूँ जो मैंने मार्क करा, that is for 51 के लिए we marked 15, तो 51 को from scale you will write still 15. See, and what we will do, we will end the point. We will mark a point and we will end. We will show the scales here. 1 centimeter is equal to 1 kilograms on x-axis, and 1 centimeter is equal to. But keep this in mind, कि distance, this distance and this distance should be same always. अगर यहाँ 1 centimeter की scale दी है, यहाँ भी 1 centimeter की scale you have to take, right? Next, histogram. Histogram is generally used for marking what? For marking continuous series. अब इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 केसेस होते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल के, अनइक्वल के, मिड पॉइंट के, इंक्लूसिव क्लास सीरीज के. वी हैव डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट देम इन प्रीवियस चैप्टर. हियर आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रश अप. इक्वल क्लास इंटरवल में क्या करोगे? सिंपल है, आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो इट्स लाइक योर मल्टीपल बार डायग्राम. जैसे मल्टीपल बार एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, जैसे. अब नाउ वी कम टू द पॉइंट. क्वेश्चन इज व्हाट? Question is this: marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Number of students 30, 45, 55, 16, 35. Histogram is used for continuous series. Keep this in mind. Okay. तो अब इसको हमने ऐसे प्लॉट कर दिया यहाँ पे, तो दिख रहा है 0 to 10,
30 तक गया, वी मार्क दैट. 10 to 20, 45 तक गया, वी मार्क दैट. 20 to 30, 55 तक गया, वी मार्क दैट, एंड सो ऑन. करेक्ट. नाउ वी आर कमिंग टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैंने पहले भी बताया, इट इज़ जनरली अनदर मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जहाँ भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसा नाम बता रहा है, वी कैन मेक. ओके. इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू हिस्टोग्राम एंड इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम हिस्टोग्राम इट्सेल्फ. ठीक, ये एक ऑल्टरनेटिव है. अगर आप हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं. और कई बार क्वेश्चन में इट्स गिवन कि कंस्ट्रक्ट पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम. तो व्हाट यू विल डू, वी विल टेक अप द मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम्स और उनको हम ज्वाइन कर देंगे. लेट्स सी हाउ वी डू दैट. Okay, let's see in this question. This is your question. So there are number of rooms, number of houses. This is a case this. इसमें हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है. तो डायरेक्टली वी जस्ट प्लॉट इट. तो प्लॉट हमने क्या करा, कोई लाइन्स नहीं बनाए. इफ़ यू कैन सी, जस्ट सी, वी हैव नॉट मेड एनी लाइन्स. वी हैव नॉट मेड एनी लाइन्स. हमने क्या करा, फर्स्ट का डेटा है क्या, 10. फर्स्ट का है 10, तो हमने 10 यहाँ पर मार्क किया. देखो फर्स्ट को रेज करते गए, बस सिर्फ पॉइंट लगाएंगे 10. सिमिलरली 2 का 15 है, तो 2 को राइज करते गए 15 तक, वी मार्क दैट. देन 3 का आपका 20 है, 3 को हम 20 तक लेके गए एंड वी मार्क दैट. लाइक दैट वी मार्क. और जो पॉइंट्स हमने मार्क करे उन सबको ज्वाइन कर दिया बाय योर स्केल, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. राइट. This is the thing. Now we are moving to next question. In this also we are doing the same. आपका I think the question is same. Yeah, question is same, isn't it? Now we are moving to frequency polygon and continuous series. जब continuous series में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? Obviously जब continuous series होती है तो we go for histograms. तो यहाँ पे दो केसेस हैं हमारे पास कि with histogram and without histogram. करेक्ट. तो हिस्टोग्राम में हम क्या आते हैं, देखिए. जब इक्वल क्लास इंटरवल हो तो पहले वी जस्ट मेक हिस्टोग्राम. हमने हिस्टोग्राम बना लिया. 20 एंड 30 का 15 है, तो 20 एंड 30 का हमने 15 जस्ट मार्क कर दिया. देन 30 एंड 40 का 25 है, तो 30 एंड 40 वाले हिस्टोग्राम को हम 25 तक लेके गए. लाइक दैट वी डिड. अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो डिस्टेंस है इट शुड बी सेम. 1 सेंटीमीटर लिया है तो सब ने 1 सेंटीमीटर लिया है. ओनली हाइट विल वैरी बिकॉज ऑफ द डेटा गिवन. ये जो डेटा है इसकी वजह से आपकी हाइट वेरी करेगी. जो चौड़ाई होगी बार्स की, हिस्टोग्राम्स की, दैट विल बी सेम. ओके. अब हमने यहाँ पे कैसे हिस्टोग्राम को कन्वर्ट करा इन पॉलीगॉन. व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हिस्टोग्राम 1 सेंटीमीटर का है तो उसका 0.5 उसका मिड पॉइंट होगा. तो ये मिड पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए. देखो मिड पॉइंट्स मार्क कर दिए और स्केल से उसको ज्वाइन कर दिया. राइट. तो दैट यू गेट पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम. अब विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम में जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. हम चुपचाप से जो डेटा है उसको मार्क कर देंगे. जैसे क्या करा हमने, जो क्वेश्चन था उसमें 25 मार्क करा 15 पे. लाइक दैट वी मार्क्ड एंड वी गॉट your polygon. अब फ्रीक्वेंसी कर्व, व्हेन वी आर ड्राइंग द सेम थिंग जो पॉलीगॉन में किया, व्हेन वी आर ड्राइंग द सेम थिंग यूजिंग फ्री हैंड से अगर हमने पॉइंट को ज्वाइन किया ऐसे 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 तो एक कर्व बन गया. ठीक है. उसमें कोई शार्पनेस नहीं रहेगी. दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व. देखो डेफिनेशन में लिखा, आर ज्वाइंट बाय अ स्मूथ कर्व, द रिजल्टिंग फिगर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व. फ्री हैंड से बनाया हमने, कोई पॉइंट जोड़े तो गोलाई में जोड़े. ऐसे पॉइंट है तो ऐसे जोड़ा, जैसे हम लोग डॉट वाली पिक्चर्स को जोड़ते हैं ना वैसे. ठीक है. तो यहाँ पे शार्पनेस नहीं होगी, स्केल का यूज़ नहीं होगा. तो हाउ वी विल डू, जस्ट सी. ड्रॉ फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. क्लास इंटरवल इज गिवन, frequency is given. Class interval is 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Frequency is 4, 10, 15, 18, 20, 16. तो हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी कर्व. तो पहले हमने क्या करा, हमने हिस्टोग्राम बना लिया.
ये विद हिस्टोग्राम वाला केस है, केस नंबर 1 है कि कैसे हिस्टोग्राम से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं। फर्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टेड हिस्टोग्राम यूजिंग इन्फॉर्मेशन। 0 to 10 का 4 है, 4 मार्क कर दिया। जैसे 4 मार्क कर दिया। 10 to 20 का 10 है, तो 10 to 20 को राइज किया, उनकी लेंथ को 10 तक ले गए। फिर 20 to 30 का 15 है, उसको ले गए वहाँ तक मार्क करा। फिर 30 to 40 का 18 है, वो मार्क करा, एंड सो ऑन हम मार्क करते चले गए। अब यहाँ पर क्या है, हमने इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। देखो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, लेकिन हमने स्केल से ज्वाइन नहीं किया है। हमने एक ऐसे 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 ले जाके किया है, फ्री हैंड से किया है, ठीक है, कोई शार्पनेस नहीं दी है। अगर हम स्केल से कर देते तो इट वुड हैव बीन frequency polygon, but since we have used a smooth hand, that is why it is known as frequency curve. Similarly, without histogram हम कैसे बनाएंगे?